Good morning. Am I audible to all? Hello. Am I audible? Hi. Good morning. Okay. Let me wait for more people to join in and then we will start the today's presentation. Hello Shaminder ji. Good morning Amrit ji. Good morning. Hello Anju ji. I think we'll wait for 2 more minutes for everyone to join in. Is my voice clear? Okay. Thank you. Thank you for your quick response. How are you all doing today? Thank you for joining me so early in the morning. Is this okay, Anju ji? Hello Arpita ji. Okay, let's start for now. So whoever have joined, I'll say good morning again to all of you, and I hope we can see more viewers in short span of time. ठीक है तो Okay, let's start. So good morning all. My name is Tanvi and I'm a speech language pathologist. So I would also go through, I would like कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा comments करें so that I can, अगर आपके पास कोई queries हैं इस चीज़ से related तो I can sort it out in this 1 hour session which we have. तो first of all, yes, of course, it's a difficult situation right now. Everyone is facing a difficult situation, lockdown and dangers prevailing around. So I would, make sure that I'll make the session light so that you all enjoy the session. Okay. First of all, I would like to thank She Connects family. जो लोग मुझे जानते हैं, it's been a little very short span of time जब I've joined this family, and yes, it is a wonderful family. I would like to thank Anju ji for becoming our guide
giving us proper guidance, what to do, when to do. Thanks a lot, Anju ji, and thank you my whole new family. I hope I adjust soon to all with all of you and be helpful to all of you. चलिए let's start. सबसे पहले I would like to know कि speech language pathology, speech therapy, how many of you have heard of this term? कितने लोगों ने ये चीज़ सुनी है, कितने लोगों ने इसके बारे में जानते हैं? Any comments, anything? Anything? नहीं? Okay, so I think yes, it is a new term, new things for you. तो I have decided कि मैं इस पूरे सेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी. फर्स्ट इज़ कि क्या क्या मिथ्स प्रिवेल कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अक्सर सुनते हैं और हमें लगता है कि हाँ ये सही है, बट एक्चुअली में ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं, हमारे अगल बगल गलत हो रही हैं और हमें उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए. And second is of course what we actually do in our programs, what we do in our therapy. I'll let you know, I'll give you a good insight about that too. So let's beginning with the myth. आप लोगों में से कितने लोगों ने ये सुना हुआ है कि अगर बच्चा नहीं बोल रहा है, अगर आपका बच्चा 1 साल हो गया, 2 साल हो गया नहीं बोल रहा है, तो वो आगे चल के बोलना शुरू करेगा? कितने लोगों ने ये चीज़ सुनी हुई है? So yes, thank you Amrit ji, good that you know about this field. So yes, of course, अगर आपने ये चीज़ सुनी हुई है तो ये गलत है, ये एक मिथ है. रीज़न बीइंग, अगर आप देखिए आपका बच्चा अगर 3 साल या 4 साल का हो गया है और वो नहीं बोल रहा है, ठीक है, उसका जो स्पीच एंड लैंग्वेज लेवल है या बहुत कम बोल रहा है, तो 1 साल के जितना है, ठीक है. तो एज यू हैव हर्ड कि हाँ बच्चे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उनका बोलना स्टार्ट होता जाता है, इट इज़ करेक्ट. बट आप ये देखिए कि कितना गैप है, बच्चा बढ़ रहा है लेकिन उसका लैंग्वेज एज उतना कम बढ़ रहा है, तो देयर इज़ अ गैप. ये क्रोनोलॉजिकल एज है, बच्चा 4 साल का है लेकिन वो बोल सिर्फ 1 या 1.5 साल के बच्चे की तरह रहा है. तो ये जो गैप है ये फिलअप करना बहुत ज़रूरी होता है. तो स्पीच लैंग्वेज थेरेपी हमारा ये गैप फिल करती है. अगर आप उसको 4 साल तक 5 साल तक थेरेपी में नहीं लेके जाते हो, उसको अर्ली इंटरवेंशन नहीं करते हो, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है? ये जो गैप है ये आगे चलते चलते बच्चे पे प्रेशर बढ़ता जाता है. एजुकेशन का प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है, ठीक है, ये सारा प्रेशर बढ़ता जाता है लेकिन बच्चा स्टार्ट नहीं कर पाता बोलना. उस पेयर ग्रुप का जो प्रेशर है उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाता. तो इसीलिए स्पीच थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. सेकेंड, इफ़ यू वुड हैव हर्ड कि जो लड़के हैं वो देर से बोलना स्टार्ट करते हैं तो चलेगा, इट्स ओके, बट दिस इज़ नॉट ओके, दिस इज़ नॉट चलेगा. क्योंकि जो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है ये जेंडर वाइज नहीं होता है कि लड़कियां जल्दी बोलना स्टार्ट करेंगी, लड़का देर से बोलना स्टार्ट करेगा, नहीं. यू हैव टू सी, अगर आपका बच्चा है इन वेरिएबल ऑफ जेंडर, अगर आपका कोई बच्चा है, आपके अगल बगल कोई बच्चा है जो नहीं बोल रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसके साथ भी हमें स्पीच थेरेपी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए. सेकंड, जो नेक्स्ट सबसे बड़ा मिथ सराउंडिंग है, अगर बच्चा जो है हकला के या तुतला के बोल रहा है, दिस इज़ लाइक मिस आर्टिकुलेट कर रहा है, कुछ साउंड्स गलत बोल रहा है, या फिर तुतला के बोल रहा है, या फिर हकला के जैसे कि स्टटर कर रहा है, रुक रुक के बोल रहा है, तो बहुत लोगों ने सुना होगा कि भाई ये चला जाएगा. या अगर आप उसको कौवे का जूठा खिला दो, कौवे का जूठा पानी पिला दो, तो ये चीज़ें चली जाती हैं, विच इज़ अगेन वेरी रॉन्ग, अनहाइजीनिक. ऐसा कुछ नहीं होता है. और इसके लिए जो है बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं स्पीच थेरेपी की, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, एंड 100% क्योरेबल दीज डिसऑर्डर्स आर. अगर आप देखिए वो बच्चा, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा हकला के बोल रहा है, ठीक है, एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, यू विल सिंपथाइज विद देम, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, बच्चे के साथ हम रुकते हैं, उसको आराम से बोलने देते हैं. बट डू यू थिंक कि जो बच्चा
का पीयर ग्रुप है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो उस तरह से उसके साथ सिंपथाइज करेंगे? नहीं. द मोमेंट दे गो टू स्कूल, एज द चाइल्ड गोज टू स्कूल, अपने वो पीयर ग्रुप में जब इन्वॉल्व होता है, वो देखता है कि सब बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एट द बैक ऑफ हिज माइंड दे बिकम वेरी मच इनहिबिटेड. वो दूसरों पे ट्रस्ट करना भूल जाते हैं, वो नहीं कर पाते ट्रस्ट, वो फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं बना पाते, विच अगेन इन द लॉन्ग रन, इन द लाइफ, वो फ्रेंड्स नहीं बना पाते अपने. अगेन ये सब चीज़ें उसको साइकोलॉजिकली बहुत इनहिबिट करते हैं. बिकॉज रिसेंटली ओनली आई हैव अ जेंटलमैन हु केम फॉर थेरेपी. ही इज़ 30 years old. ठीक है, अगेन 30 years old, और उनको जो स्टटरिंग है, जो हकलाने वाली प्रॉब्लम है, वो उनको बचपन से है. ही वॉज एनरोल्ड फॉर थेरेपी व्हेन ही वॉज 25 years old. सो इफ़ यू कैन इमेजिन, उन्होंने टेक्निक, सारी जो थेरेपी टेक्निक है, उनको बहुत जल्दी इम्बाइब कर लिया बिकॉज ऑफ हिज मेंटल लेवल. उनको पता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है, अंडरस्टूड, ही हैज़ अंडरस्टूड एवरीथिंग. बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लाई दोज थेरेपी टेक्निक इन हिज नॉर्मल डे टू डे लाइफ, ही इज़ नॉट एबल टू डू. रीज़न, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड इतना ज़्यादा उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, इतना साइकोलॉजिकली हील नहीं हुआ है उनका ब्रेन सबकॉन्शियसली कि ही इज़ नॉट एबल टू डू दैट. सो डू यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन? कि अगर यही चीज़ उनकी बचपन में दूर हो जाती, अगर यही थेरेपी उनको बचपन में मिल जाती, सो ही वुड हैव बीन सच अ ग्रेट orator. He would have excelled in his life right now. So this is something which is very important. The next thing which we always say is, अगर बच्चा तुतला के बोल रहा है, तुतला के इज मिस आर्टिकुलेशन, दैट इज़ अगर बच्चा कोई साउंड गलत बोल रहा है. ठीक है, अगर वो कोई साउंड गलत बोल रहा है तो वो टिल द एज ऑफ 3 years इट इज़ ओके. ठीक है, बट अगर बच्चा 3 साल के बाद भी गलत बोल रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स दे शुड बी एनरोल्ड फॉर थेरेपी. रीज़न, अगेन जैसे ही बच्चे की प्रॉपर स्कूलिंग स्टार्ट होती है, हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो गलत बोलते हैं, वो उसी चीज़ को गलत लिखते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ बच्चे होते हैं जो क की जगह त बोलते हैं या ख की जगह थ बोलते हैं. लाइक मम्मी खाना खाओगी. यस, सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सब टिल द एज ऑफ 4 years करेक्ट हो जानी चाहिए. क्योंकि हेयर you should understand something कि there is a connection between what you are hearing, what you are talking and what goes in your brain. So there is a cycle of connection here. ठीक है, जब वो कनेक्शन कहीं ना कहीं गलत होता है तो वो सब चीज़ें डेली रूटीन में नज़र आती हैं. राइटिंग में आप देखोगे, अगर बच्चा क बोल रहा है, क को त बोल रहा है, तो आप ये ध्यान देना कि राइटिंग में भी वो त लिख रहा है. ठीक है, उस लेवल तक पहुँचने में, उस लेवल को करेक्ट करने में टाइम लगता है अगर आप उस बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन नहीं देते हो. जस्ट आई विल स्टॉप हेयर कि हरलीन जी हैज़ asked few question. Yes, I will come back to you. He suggests some techniques. He speaks and his voice is not clear. Yes ma'am, I'll come back to you. No, it is not too late for therapy and it is 100% curable. If you enroll your child for therapy, it is 100% curable. So next what I would say कि आपने बहुत बार सुना होगा कि स्पीच थेरेपी सिर्फ बच्चों के लिए होती है, तो ऐसा नहीं है. Speech therapy is not just for young toddlers or children, no. It is for teenagers who are not able to make friends, not able to communicate their inner emotions. Speech and language therapy is not just for children, they are also for adults who are stroke survivors, cancer survivors. We not only look for their speech and language or communication, we also look for their swallowing. आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि they have tubes for their feeding. So we have swallowing therapy also. We do therapy, we treat them so that they can, have proper food and they can communicate, they can have their emotions, they can tell what is wrong with them, how they are feeling. So it is really very much important for them also, not just for children. So let's see something कि
कब यू हैव टू बी अलर्ट फॉर योर चिल्ड्रन, ठीक है. दिस इज स्पेशली नोट डाउन फॉर द न्यू मदर्स और people who have small children at their home. You should all be very much careful about them. तो अगेन वील सी समथिंग कि बहुत लोगों ने, आप लोगों ने ये चीज़ रिसेंट स्टडीज सुनी होंगी कि जो बच्चा जब माँ की कोख में होता है, व्हेन द चाइल्ड इज इन वूम, ठीक है, दे स्टार्ट हेयरिंग दैट टाइम इटसेल्फ, ठीक है, वॉट एवर द मदर इज हेयरिंग, दे स्टार्ट हेयरिंग देमसेल्व्स. हैव यू ऑल हर्ड अबाउट दिस? Please comment below if you have heard about this or not. So as I said, there's a connection between what you hear, what you talk, and the mental level, the cognition. There's a connection in all these three things. So जैसे ही बच्चा सुनना स्टार्ट करता है तो you should understand कि लैंग्वेज भी वहीं से स्टार्ट हो जाती है बच्चों की. So अगर लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, the crying is in itself a language. न्यू मदर्स कैन वेरी वेल डिफ्रेंशिएट कि कब बच्चे को भूख लगी है, कब बच्चे को दर्द हो रहा है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइंग इन विच दे कम्युनिकेट. दिस इन इटसेल्फ इज कम्युनिकेशन. एंड अर्ली इंटरवेंशन में वी लुक इनटू दैट ऑल्सो. इन्फेंट क्राई एनालिसिस इज समथिंग विच वी डू एंड वी अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा बच्चा रो रहा है, इस तरीके से रो रहा है, इस तरीके से कुछ कर रहा है, so there is some problem or the child is perfectly normal. So we look into that. Okay, so you have to take care of how your child is crying from the day one. If it is very feeble, communicate with your pediatrician, communicate it with the speech language pathologist. Then अगर जब बच्चा 3 महीने का होता है, ठीक है, तो इफ़ यू आर अंडरस्टैंड 3 महीने तक अगर कोई तेज़ आवाज़ होती है, ठीक है, तो बच्चा डर जाता है. दिस अ स्टार्टल रिस्पॉन्स. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू डोंट सी दिस इन योर चाइल्ड बाय द एज ऑफ 3 months, अगेन कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट. 6 से 7 महीने में बच्चा इज़ एबल टू लोकेट यू, गिव अ स्माइल टू यू. जैसी आपकी आवाज़ आती है, अगर रो रहा है तो वो शांत हो जाएगा, अंडरस्टैंड्स योर इमोशंस. अगर ये सब बच्चा नहीं कर रहा है, तुरंत पलट के नहीं देख रहा है जहाँ से आपने बुलाया है उसको, या अपनी बात को नहीं समझा पा रहा है, कंसल्ट विद द स्पेशलिस्ट है, कंसल्ट विद द स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट है. नेक्स्ट, 1 साल तक बच्चा, अगर 1 साल का हो चुका है बच्चा, अंडरस्टैंड 1 साल तक बच्चा 3 या 4 शब्द मीनिंगफुली बोल लेता है. मीनिंगफुली बोल लेता है मतलब लेबल कर लेता है जो जो उसकी नीड बेस्ड चीज़ें होती हैं. सो रिमेंबर, व्हेन इफ़ योर चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू डू दिस, अगेन कम्युनिकेट विद अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और अ पीडियाट्रिशियन, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन. बट उसके बाद जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, 2 से 3 साल, रिमेंबर द चाइल्ड्स वॉट एवर ही इज सेइंग, क्लैरिटी इंक्रीजेस. जो थर्ड कोई गेस्ट आता है आपके घर में, उसको बच्चा जो बोलता है वो समझ में आ जाता है. ही हैज़ 50 to 100 वर्ड्स, ठीक है, इन हिज वोकेबलरी. ही अंडरस्टैंड्स ऑल योर बेसिक थिंग्स. बेसिक आप कितने भी कमांड्स उसको बोलते हो, ही अंडरस्टैंड्स ऑल योर बेसिक थिंग्स. कीप नोट ऑफ दीज थिंग्स. अगेन इफ देर इज़ सम डिले, और अगर आपको लगता है कि बच्चा उस तरीके से नहीं बोल रहा है, तो उस धारणा में मत रहिए कि जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे ही तब हम उसकी स्पीच थेरेपी कराएंगे, या जैसे ही बच्चा स्कूल जाएगा तब हम उसकी स्पीच थेरेपी कराएंगे. नहीं, अर्ली इंटरवेंशन वर्क्स दी बेस्ट. ठीक है. नाउ लेट मी सी. यस पूनम जी, अगर बच्चा आपका 1.5 साल का है एंड लेट्स सी हाउ मेनी वर्ड्स ही सेज एंड इज इट मीनिंगफुल और नॉट. ठीक है. प्लस उसके बाद बच्चा अपने फ्रेंड सर्कल में एंजॉय कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको दूसरे बच्चों के साथ खेलना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है. इफ़ ही इज़ नॉट एंजॉइंग द ग्रुप, इफ़ ही इज़ नॉट एंजॉइंग द फ्रेंड सर्कल, not being attentive to what is happening around, again an alarming sign. You should understand this is an alarming sign. ऐसा नहीं है कि बच्चा लेजी है या नहीं ध्यान दे रहा.
there is some problem going on, you should not ignore that problem, you should work on that problem, take guidance. ये जो एक थेरेपी का टैबू है जो हमारे सोसाइटी में है कि हम थेरेपी नहीं अटेंड करेंगे, थेरेपी अटेंड करना मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसका मतलब होता है कि मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है. अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली पेरेंटल गाइडेंस हेल्प्स यू अ लॉट. Then let's look into some other things like what we can do in the present scenario. Again in this COVID situation, जो बच्चे थेरेपी जा रहे हैं उनकी थेरेपीज बंद हो गई हैं, ठीक है. जो नॉर्मल बच्चे हैं, मदर्स आर रियली वरीड अबाउट कि हम बच्चों के साथ क्या करें, कैसे करें कि बच्चे को हम एंगेज रख पाएँ, राइट. वी ऑल आर वरीड अबाउट इट बिकॉज वी ऑल आर अंडर ट्रमेंडस प्रेशर, वी ऑल हैव सो मच ऑफ वर्क अराउंड. घर का काम है, अपने प्रोफेशनल फ्रंट है जिसको हमें देखना है. वी आर सो मच वरीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो लेट्स लुक इनटू कि हम क्या क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चे अवेयर रहें सब चीज़ों से, हमारे बच्चे स्पीच एंड लैंग्वेज वाइज कॉग्निटिवली बहुत इम्प्रूव करते रहें. लेट्स लुक इनटू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग विच आई वुड सजेस्ट टू द मदर्स इज़ कि यू हैव टू बी in your correct mindset, have to have a routine, okay. And routine, strict routine say I would suggest that you should have a strict routine. That does not mean ki time strict, but it should be a time span strict routine. ये नहीं होना चाहिए अगर आप कहते हो कि 10 बजे हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ सम फैमिली इज देयर एंड सेज कि अच्छा मुझे 10 AM पे मुझे ब्रेकफास्ट करना चाहिए, दैट डज नॉट मीन कि हमें रोज़ 10 AM पे ब्रेकफास्ट करना चाहिए, बट देयर हैज़ टू बी अ टाइम स्पैन, ठीक है. तो उससे क्या होता है, बच्चा भी एक शेड्यूल में रहता है, ठीक है. बच्चा ऑल्सो लिव्स इन अ प्रॉपर रूटीन कि ठीक है मुझे अभी ये करना है, ये करना है, ठीक. दिस गिव्स यू अ प्रॉपर माइंड सेट, अ करेक्ट बिहेवियर, ठीक. यू वोंट बी मोर एजिटेटेड और इरिटेटेड थ्रू आउट द डे, ठीक है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग which we should have is involve your child in daily course, in your household work. And involve your child कहना बहुत आसान है, आप कह दोगे कैसे करें, गिरा देगा चीज़ें, इधर उधर रख देगा, राइट. आई कैन अग्री टू दैट सिचुएशन कि इट हैपन्स, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि हमें उस चीज़ को ट्राई करना चाहिए कि हम किस तरफ कैसे बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर छोटा बच्चा है बहुत, ठीक है, तो मेक श्योर दैट he or she puts all his toys back into the cupboard, in the toy room or in the toy basket, ठीक है. मेक श्योर he keeps his plates or used bowls in the kitchen. You can also involve them in keeping the clothes away, may it be washed clothes, may it be dirty clothes, wherever you keep, you can allow that. Next thing which I would suggest is अगर आप किचन में भी जा रहे हो, किचन का भी काम कर रहे हो, make sure they are on the safe space in the kitchen and let them do the things. Give them a toy knife, let them be involved in yourself. क्योंकि जब हम चीज़ें साथ में करते हैं, जब हम चीज़ें एक साथ करते हैं, they enjoy it a lot. I'll tell you an example of that also. Then till now, are you all with me? Are you all understanding? Anywhere if I'm going fast, please let me know. Anywhere you want any suggestions, please comment below so I can solve those. Yes, Poonam ji. अच्छा, सिर्फ ये 3 words use करता है. That's okay, but you need to be on a proper guide. You need to note down the words कि वो और क्या क्या बोल रहा है. अगर सिर्फ 3 वर्ड्स बोल रहा है, इट्स अ लिटिल मैटर ऑफ कंसर्न. वी नीड टू चेक हिज आई कॉन्टैक्ट, ठीक है. कॉम्प्रिहेंशन आप जैसे बता रहे हो, समझ रहा है सब चीज़ें, क्या आपके कमांड्स फॉलो करता है, विल गेट बैक, ठीक है. आप मुझे बताइए इसके बारे में. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ एज अ मदर, ठीक है, मॉडर्न मदर्स वी ऑलवेज थिंक कि ठीक है अगर बच्चे ने कोई चीज़ मांगी है, लेट्स गिव देम immediately, let's buy them. Yes, it happens with all of us. We somewhere feel guilty, अच्छा we cannot give that much time. बच्चा कुछ मांग रहा है, दे दो जल्दी से, उसको खरीद के दे दो. This guilt should not be there because you are giving time to them.
ओके एंड अगर आप सब चीज़ों को तुरंत उनको ख़रीद के दे दोगे, तुरंत सब चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे, डू यू थिंक देयर कॉग्निशन विल इम्प्रूव? How will you actually involve them cognitively? How will you actually make them more creative? So again I would suggest कि जो उनके already toys हैं, उन toys को और अपनी creativity को combine कीजिए. ये मत सोचो कि नहीं मेरे अंदर तो creativity नहीं है, ये मेरा friend है इसके में कितनी creativity है, उतना creativity मेरे में नहीं है. Don't think something like that. We all have some or the other creativity. Few of you are very good in gardening, few of you are very good in cooking, few of you are very good in organizing things. So combine your creativity with your child's interest. If your child, for example, if your child is very much interested in cars, like for जो लड़के होते हैं अधिकतर जो है cars में बहुत interested होते हैं, ठीक है, और ब्लॉग्स में बहुत इंटरेस्टेड होता है. सो इफ़ योर चाइल्ड इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन कार्स एंड ब्लॉग्स एंड यू आर इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग, सो यू नो आप कैसे उसको कंबाइन कर सकते हो? गिव देम ब्लॉग्स, यू डू योर गार्डनिंग, आस्क देम ओके मेक अ पॉट आउट ऑफ योर ब्लॉग्स, help them, include with them in the same activity, help them make the pot, put some mud in it, put some seed, try it out, be silly, be funny, be creative with them. You can do it, all of you can. Next thing what I always suggest is for the new mothers, ठीक है, कि जब आप मालिश करा रहे हो बच्चे की या जब आप बच्चे को नहला रहे हो, रिमेंबर दिस इज़ जब बच्चा 1 से 2 महीने तक का है तब भी आप ये कर सकते हो. एंड दैट इज़ जब आप मालिश करा रहे हो, जब आप नहला रहे हो बच्चे को, ठीक है. व्हाट डू यू हैव टू डू इज़ कीप टॉकिंग टू देम, कीप सिंगिंग राइम्स. व्हाट आई हैव ऑब्जर्व रिसेंटली इज़ कि जब बच्चा की मालिश करा रही है मम्मी या समवन, दे स्विच ऑन अ टीवी और दे स्विच ऑन सम वीडियो ऑन यूट्यूब. डोंट डू दिस, टॉक टू देम दैट टाइम. डोंट थिंक कि अभी छोटा है इसको क्या समझ में आएगा. नो, टॉक टू देम, क्योंकि उस टाइम पे जब आप बॉन्ड अपने बच्चे के साथ बनाते हो, जितनी भी बातें आप अपने बच्चे के साथ करते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन एज आई सेड, लैंग्वेज इज डेवलपिंग फ्रॉम द डे 1. दिस विल हेल्प यू टू डेवलप लैंग्वेज. ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर टिल नाउ. नेक्स्ट थिंग विच आई वुड सजेस्ट इज़, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे के साथ आपको इन्वॉल्व होना है. बच्चा जो भी एक्टिविटी कर रहा है आपको इन्वॉल्व होना है. फॉर दिस आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, अ वेरी पर्सनल एग्जाम्पल हैपेंड विद मी फ्यू डेज बैक. कि माई डॉटर इज़ 3 years old, going to be 3 years old, okay. So she is very much interested right now in making houses, ठीक है, with blocks, with furniture around, with pillows. So उसने मेरे को बोला कि मम्मा आप पिलो से मेरे को हाउस बना दो. आई मेड द हाउस विद पिलोस, ओके. एंड देन शी हैज़ दिस थिंग कि वी डू अ लॉट ऑफ प्रिटेंड प्ले कि अच्छा मैं आइसक्रीम वेंडर हूँ, आप आओ मेरे से आइसक्रीम खरीदो, ठीक है. सो व्हाट हैपन्स इज दैट आई एम आइसक्रीम वेंडर और वो अपने पिलो वाले हाउस में बैठी हुई है, ठीक है. पिलोज खड़ा करके मैंने हाउस बना दिया. शी इज सिटिंग एंड शी कम्स आउट ऑफ द हाउस टू बाई आइसक्रीम. और मैं क्या की, मैंने जो है मैं जल्दी से गई एंड आई sit in her pillow house, and you will not believe she became so happy. She was, the happiness, the laughter was so commendable, literally visible, and I felt good. Yes, they want you as a parents to become silly. They want you to come to their level and do the activities with them. Because when you develop that bond, then the language which the child learns at that moment is good, and the children will learn it immediately. So you will have to understand that fact. The next important, very important thing which we always forget is, हम जल्दी में रहते हैं, हम बिजी रहते हैं, हम खड़े खड़े बच्चे से बात कर रहे हैं, हम अपना काम करते करते बच्चे से बात कर रहे हैं. This is very wrong.
दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी 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 रॉन्ग. आई वुड सजेस्ट कि इसमें आपको क्या करना चाहिए. अगर बच्चा आपसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, सो वॉट यू हैव टू डू इज़ sit on the child's level, have a face-to-face contact, have a eye contact with them, okay, and then talk to them, listen to them, give them 2 or 3 minutes from your schedule. You can do it. ठीक है, आप ये करिए. आप उसके साथ फेस टू फेस जब आप बात करेंगे, आई कॉन्टैक्ट दिखाएंगे, सो देयर इज़ अ पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन विच हैपन्स, इज़ अ बॉन्ड, लर्निंग बॉन्ड डेवलप्स विच हैपन्स, वेयर यू बोथ बिकम अ इक्वल कम्युनिकेशन पार्टनर. बच्चे को एक इम्पॉर्टेंस दिखती है अपने अंदर. ठीक है, सो व्हेन यू डेवलप दैट, देन लैंग्वेज डेवलप्स वेरी फास्ट. ओके, सो आई थिंक दीज आर गुड इनफ टिप्स एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ये सब चीज़ें यूज़ करिए अपने साथ. नाउ कमिंग बैक टू वॉट वी डू इन एट आवर प्लेस, वॉट वी डू एट आवर क्लिनिक. ठीक है, विच मेक्स अस डिफरेंट, विच मेक्स अस स्पेशल. सो यस, थेरेपी में आप जब जाते हो, आपको ये बहुत लोगों की धारणा है और सबको पता भी है कि जब थेरेपी आप स्टार्ट करते हो तो काफ़ी टाइम तक थेरेपी चलती रहती है. यस, बहुत टाइम तक चलती रहती है. सो आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज वी पैरेलली वर्क नॉट जस्ट विद योर चाइल्ड, वी ऑल्सो वर्क विद यू. I personally take the sessions. So what happens in the sessions is, half of the time in the session goes to the child, so that I work the activity, I work the technique with the child, see how the child is responding, and then major part of the therapy session goes with the mother, because I make sure that mothers understand what is happening. मदर्स अंडरस्टैंड द टेक्निक. जब तक आप टेक्निक नहीं सीखोगे, आप घर पे उसको नहीं करा पाओगे, आप थेरेपी को रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे घर पे. और जब तक आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे, चाहे आप सालों थेरेपी ले लो, ठीक है, बच्चा इम्प्रूवमेंट दिखता रहेगा, बट ही विल नॉट बी नियर टू नॉर्मल फॉर विच यू हैव अटेंडेड द थेरेपी. यस, सो वी वर्क इन कोलैबोरेशन with child psychologists who just don't work with the child, but they work in the bond between you, bond between a parent and a child. First thing. Second, we work with a music therapist and a vocational trainer. vocational trainer की importance तब आती है कि जब बच्चा नियर टू नॉर्मल हो रहा है, बट स्टिल देयर इज समथिंग मिसिंग इन देम. ठीक है, ही इज़ नॉट एबल टू कोप अप 100%. सो व्हाट डू वी डू? वी कैन नॉट लीव द चाइल्ड लाइक दैट. वी नीड टू सी व्हाट एग्जैक्टली आर हिज स्ट्रेंथ, वी नीड टू सी व्हाट एग्जैक्टली हैज़ टू बी डन. ठीक है, उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो अदर देन आवर ओन कि हम कितना बच्चे को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में क्या करा रहे हैं, अदर देन दैट स्पेशल एजुकेशन, अदर देन ऑल द थेरेपीज विच आर वी आर डूइंग, वी नीड टू लुक इनटू दीज थिंग्स टू. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ अ न्यू क्रिएटिव आइडिया विच आई एम really very proud of right now is I always prefer parental comfort. ठीक है, तो पेरेंटल कंफर्ट कब आता है, कैसे आता है? दिस न्यू आइडिया इज़ नॉट साइंटिफिक. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कहीं उसके आपको रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे, कुछ हो जाएगा, बट दिस इज़ माई पर्सनल बिलीफ एंड इट सेज कि इफ़ यू हैव अ patient and if you have a proper home surrounding, home environment which gives you peace, yes, which gives an aura of concentration to you, to your child, it gives a fun loving environment to your child. ठीक है, तो that environment improves language and speech learning to the most. So here again I have in my panel a home decor. ठीक है, home decor team. She builds again. आप अगर home decor team के बारे में सुनोगे you will feel कि अरे ये तो बहुत हाई फंडू चीज़ है, इससे बहुत पैसा लग जाएगा. ऐसा कुछ नहीं.
there is something which we can do from whatever is there at your home. ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नया लेना है, घर बदलना है, nothing like that. Very simple, very calm environment. How can we do that? We have that perfectionist also in our team. So with the team of me as a speech language pathologist, with a leading psychologist, music therapist and vocational trainer and a home decor team, we build a very comfortable environment, not just for the child but also for the family, because the family connection, the family involvement in your child is very much important. Now again, there is something we have as parental counseling and early intervention. In parental counseling and early intervention, what happens if your child is 1.5, 2 years, 2.5 years old, we don't say कि आप उसको direct therapy कराओ, ठीक है? What we prefer is कि you learn the techniques from us, you understand what is going on, what is happening around, and then you build the same environment there with your child at his comfort. That affects a lot. Okay, then what do we actually do for speech and language therapy? We have an assessment procedure, ठीक है? Assessment में it's not कि कोई machine है, कुछ है. We have Indian जो population को affect करता है, ठीक है? जो Indian population के level पे है, that test material. From that test material, we do the assessment from your child. In that assessment, we understand what are his levels, what is your child's level in a speech and language aspect, in motor aspect, वो चल कैसे रहा है, fine motor skills उसकी कैसी हैं, ठीक है, in that aspect, in cognition aspect, ठीक है, we have that test materials developed by very renowned people in our field, ठीक है. So with that test materials, we understand what is the level of your child, and with that we develop a specific goal-oriented lesson plan for your child. Okay. Next thing we do is home plans. We give you a lot of home plans which involve very comfortable and very easy activities for your child, ठीक, which you can do आराम से अपना काम करते करते भी. We understand your perspective, we understand your family's perspective, and then we develop your lesson plan and your activities which you can do comfortably, and there is no burden on you कि अच्छा अभी ये काम करना है, ये काम करना है, ये भी करना है. No. Okay. And next part, we also have stroke therapy. जो लोग जिनको स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, उनके लिए क्या थेरेपीज़ प्रोवाइडेड हैं, उनके लिए swallowing थेरेपीज़ कैसे हैं. आई हैव पर्सनली डन ओरल प्लेसमेंट थेरेपी, तो उसमें वी अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैज़ टू बी डन. हमें कितना माउथ और जो मसल्स हैं माउथ की, उसमें हमें कितनी एक्सरसाइज करानी है, किस किस चीज़ों से करानी है. वी वर्क ऑन दैट, सो आई एम पर्सनली ट्रेन्ड इन दैट. एंड नाउ लेट्स understand our achievements, because yes, we work hard, we have built a team and we work really hard. So our clinic will complete 1 year next month, and within this 1 year we have the clientele of more than 200 people who are actively participating and actively with us. Secondly, we have more than 1,000 followers on our page, because on our page you would see, if you go to our page by the name The Speech World, you would see I keep posting activities for different age groups. I keep posting very nominal activities जो आप day to day life में करा सकते हो. So we have the clientele of this, which I am very proud of, because I don't deal parents as some other people. I deal them as my colleagues. I deal them as my parents.
जिनको क्या क्या प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम अगर मैं फेस कर रही हूँ तो मैं उस चीज़ से कैसे सॉर्ट करूँगी, उस चीज़ को कैसे आगे बढ़ूँगी उसके साथ. आई हेल्प देम इन दैट. सो येस, you should please visit my page, The Speech World. We have inputs again from special educators, we have inputs from psychologists, vocational trainers, home decor team, we have that. Then we have a YouTube page, YouTube channel, again with the name The Speech World. I would please request you all to go to that and select and subscribe that and share that. And yes, I am available on my phone. My phone number is 844-77-23457. I would request you all to mail me if you have any queries at thespeechworld@gmail.com. Let me check if I think I have answered all the queries till now. I'll give some more time. हरलीन जी प्लीज़ आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए. वॉइस क्लियरिटी मतलब आप का क्या है, क्या वो साउंड्स गलत बोलता है आपका बच्चा? जैसे मैंने कहा, अगर सिर्फ साउंड गलत बोलता है, ठीक है, या बहुत जल्दी अपनी सारी बात बता लेता है और दूसरों को नहीं समझ में आता है, सो देयर आर थेरेपी टेक्निक्स एंड दे आर 100% क्योरेबल. And this problem is 100% curable. पूनम जी, as I said, आपको अपने बच्चे को बहुत सारा इन्वॉल्व करना है अपनी डेली रूटीन में, ठीक है. अपने टाइम टू टाइम जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए, उसके साथ बहुत बातें करिए. जब आप उसके साथ बातें करें, उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में बातें करिए, एंड यू वुड सी, उसका ध्यान अट्रैक्ट करिए अपनी तरफ, एंड यू वुड सी अ ट्रेमेंडस चेंज. अगेन, अगर आपको चेंजेस नहीं मिलते हैं, then you can connect with me. I am there to help you out. And right now I am opening an offer which says your first consultation with me, and especially for my She Connects family, that is free of cost. So my She Connect family can connect with me with your queries for your children, and that first consultation is free of cost. So if you don't have any other query, Anju ji, that is free consultation, so that is free of cost for my She Connects family. If they have any queries regarding their children, they can connect with me at 844-77-23457. And the biggest thing is, all these things, all your queries will be discreet only with us. We do not publish anything anywhere without your permission. So if anything is required, we prior take your permission. We don't publish your names. We do it very discreetly, so you don't have to worry about the social taboo going around कि therapy attend करता है या ऐसे जाता है. Thank you Pratima, thank you very much. I hope it helped a lot of people around. I would suggest you all to come up with more queries if you have. Any other queries? No? Okay, I think you all would like to connect personally with me. So I would say thank you for attending. Thank you all for giving time to me from your Sunday, getting up early and taking up
a very early session with me. Thanks a lot. Thank you all. Much gratitude. Stay safe. Thank you.